ये वाला डायग्राम दिख रहा है? Are you able to locate bicuspid and tricuspid in this diagram? Yes. Please have a look. Okay. Now, where are the valves? Right here. Valves तुमको दिखेगा और valves को किसने ऐसे होल्ड करके रखा पोजीशन में? Are you able to see the string like structure? क्या बोलेगा? Okay. So these are called as chordate antenna. The only function of chordate antenna is to hold the valves in position and prevent the upturning of the valves. Okay. By the way, अगर तुमको कुछ नहीं समझ में एग्जाम के टाइम और अगर valve का function पूछा है तो एक तो ऐसे लिख दो कि it prevents the backflow of the blood. So you at least get a half mark or something. बहुत specific पूछा होगा. वो देखना पड़ेगा कौन सा valve पूछा है ना? Then you have to write oxygenated, isolated, whatever. वो right auricle से relevant है. हाँ बस. But the major function is always that it prevents the backflow of the blood. पर chordate antenna क्या करता है? Upturning of valves को prevent करता है. मतलब वो दरवाजा ऐसा खुलता है ना, वो ऐसा ना खुल जाए. उसको देखने का काम हो. ठीक है? अच्छा, I'm just doing that little box क्योंकि अच्छा that box says that heartbeat differ करता है according to the size of the organism and according to species to species. For example, heartbeat will always depend upon the rate of an organism, how enormous the organism or how small the organism is. Now, for example, if there is an enormous large organism, let's take an example of blue whale. So if there is a blue whale, उसका body structure कितना बड़ा होता है? ठीक है, तो उसका अगर इतना बड़ा बॉडी है तो उसका हार्ट धीरे से पंप करेगा, मतलब उसका हार्ट पंप तो करता है बट ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो उसको टाइम लगेगा. सो इन अ मिनट द हार्ट विल बीट फॉर फ्यूअर टाइम्स. बट इफ देयर इज अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी और अ बर्ड, स्पैरो फॉर एग्जांपल, वो स्पैरो देखा है कितना सा होता है, कितना लड्डू जितना सा होता है, और इतना सा तो उसका बॉडी है. ठीक है, यू अंडरस्टूड ना? दैट्स इट. सो इट इज वेरी स्मॉल और उससे क्या होगा कि उसका जो हार्ट है इफ इट इज पंपिंग तो उसका ब्लड में सॉरी उसका बॉडी में ब्लड फटाफट सर्कुलेट हो रहा है. इसी वजह से 1 मिनट में the heart beat can be maximum, it can range up to 800-900 also. That is what is given in that blue box. I do not think you can remember everything but at least few of them has to be remembered. For example, look at whale. I always remember whale with how much? That is 15 BPM. We say BPM. BPM का मतलब ब्लड मेरे तो बीट्स पर मिनट. कौन सा बीट? हार्ट बीट. और ऐसा मत देखना हार्ट बीट पर मिनट. बीपीएम मींस बीट्स पर मिनट. इतना पता होना चाहिए तुमको. वो कोविड के टाइम पे वो नहीं लगा देते ऑक्सीजन का ऑक्सीमीटर, उसमें भी बीपीएम आता था ना? कुछ भी देखते थे क्या? देखा नहीं होता. Anyways, whale 15 BPM. Then you have to remember adult male and adult men and adult women or female, जो भी बोल सकते हो. तो men का कितना है? 64 to 72 is the range and female is 72 to 88. ठीक है? पूछना मत ऐसा क्यों है, फिजियोलॉजी दोनों का अलग है तो इसीलिए ये रिकॉर्डिंग आता है. Okay? Adult जी मतलब babies का. Yes, please look on to the newborn infant that is given as third last. Newborn infant has 140 BPM. So if at all there is a small baby, an infant, if you keep your 2 fingers onto the chest, center of the chest, you will see it's continuously throbbing. क्योंकि उसका 140 BPM है. अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड. तो अगर डबल भी हो जाए तो भी ज्यादा हो जाएगा. 140 उससे भी ज्यादा है. तो जब छोटा भी होता है तो उसको ऑक्सीजन का बहुत सारा जरूरत होता है. उसका इतना डेवलप नहीं हुआ रहता ना सारे ऑर्गन्स, इसीलिए द बीपीएम इज वेरी वेरी फास्ट. बट जैसे ही धीरे धीरे वो बेबी बड़ा होता है, अडल्ट में हो जाता है, तो उसका ये आ जाता है. And in general, it may fluctuate. If you are doing any strenuous activity, it will go up. But at rest, it will go down. तो तुम जब सोते हो तो तुम्हारा BPM थोड़ा सा लो होता है और तुम जब एक्टिव हो तो तुम्हारा BPM थोड़ा सा हाई होगा. इसीलिए ये रेंज दिया है. ऐसा मत बोलना 70 ही है. 70 नहीं हो सकता. रेंज दिया जा सकता है. Then I want you to remember sparrow in a vigorous activity that is 800 to 900. Vigorous activity, if you have seen a sparrow, it keeps on flying here and there. So in that activity, if you count the BPM, it's 800 to 900. So I always remember अपना whale, then men, women and sparrow. इतना तो तुम याद रखो. Infant तो भी बचा क्या? Elephant बचा 25, horse बचा 40. अरे बच्चा infant. हाँ, infant मतलब human infant. Thank you. Okay. So this is basically about the heart rate per minute. What do you understand by metabolism? Give me the answer and then you can go. The activities जो
वो बॉडी करती है अपना। एक एग्जांपल तो क्या, कोई लड़का बहुत खाता है बट वो बहुत पतला रहता है, मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल है। अरे नहीं वो इसके थियरी के पीछे मेटाबॉलिज्म basically means when you eat something, all the absorbed nutrients will get assimilated, they make into your body structures and energy is produced. इस पूरे चक्कर को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसीलिए कनेक्टिंग टू योर एग्जांपल, जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि कोई जितना खा रहा है, अगर मेटाबॉलिज्म सही है ना तो उसका वेट बहुत बैलेंस रहता है। जिसका भी जो भी कुछ खा रहा है तो वो एकदम नॉर्मल वेट में है, बॉडी स्ट्रक्चर फिट है, तो हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म इज फाइन। इसका मेटाबॉलिज्म अगर ज्यादा होता है तो वो भर भर के खाए ना तो भी वो पतले रहते हैं, ठीक है। और किसी का मेटाबॉलिज्म अगर वीक है या स्लो है तो थोड़ा सा भी खाएंगे ना तो दे कीप ऑन गेनिंग वेट एंड दे फील ऑलवेज लेजी। समझ आया? तो इट इज ऑल द गेम अबाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तुम सही कर सकते हो, और स्लो होगा तो एंडो नॉर्मल है तो मीजो एंडो Ecto. पी Yes.